خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے بات کریں گے جاوید عالم اوڈو کو ایک مرتبہ پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی تعینات کر دیا گیا۔ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ آئیے ان کے کیریئر پر ایک نظر ڈالتے ہیں جاوید قائم خانی کی اس رپورٹ میں۔ جاوید عالم اوڈو 16 اکتوبر 1969 میں پیدا ہوئے۔ 6 نومبر 1994 کو کمیشن پاس کر کے پولیس میں اے ایس پی بھرتی ہوئے۔ 1999 میں اے ایس پی ڈرائیونگ لائسنس برانچ رہے۔ 2002 میں ایس پی کے عہدے پر ترقی ملی۔ 2005 میں ایس پی اسپیشل برانچ کراچی تعینات ہوئے۔ 2007 میں گریڈ 19 میں ترقی ملی۔ 2008 میں اے آئی جی پی آپریشن کراچی تعینات ہوئے۔ 2011 میں پرنسپل سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر مقرر ہوئے۔ 2012 میں ڈی آئی جی اسپیشل برانچ سکھر کراچی ویسٹ اور ساؤتھ کراچی تعینات ہوئے۔ جنوری 2019 میں خدمات بلوچستان حکومت کے حوالے کر دی گئیں۔ 2021 میں ایڈیشنل آئی جی کے عہدے پر ترقی ملی اور 2022 میں ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ تعینات ہوئے۔ 2022 میں کراچی پولیس چیف تعینات ہوئے۔ 2023 میں کراچی پولیس چیف کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ کسی کو بھی سرکاری زمین کا 1 انچ بھی قبضہ نہیں کرنے دوں گا، جاری وزیر اعلیٰ کا 2 ٹوک اعلان۔ مراد علی شاہ نے ملیر ایکسپریس وے کو مکمل کرنے کی ٹائم لائن مانگ لی۔ کمشنر کراچی کو ملیر ایکسپریس وے سے ریکلیم ہونے والی زمین کا سروے کرنے کی ہدایت کر دی۔ عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیے۔ ایکسپریس وے تکمیل کی جانب گامزن جیال وزیر اعلیٰ نے کام مزید تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایکسپریس وے پر فالو اپ اجلاس مراد علی شاہ نے ملیر ایکسپریس وے کو مکمل کرنے کی ٹائم لائن مانگ لی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت کی کہ ملیر ایکسپریس وے کے پہلے مرحلے پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جام صادق پل تا شاہ فیصل ٹاؤن 15 کلومیٹر کا ٹریک پہلے مرحلے میں مکمل کیا جائے۔ اگست کے آخر یا پھر ستمبر میں ایکسپریس وے کو کھولنا چاہتا ہوں۔ ملیر ایکسپریس وے ایئرپورٹ کا ایک متبادل روٹ بھی بن جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کمشنر کراچی کو ملیر ایکسپریس وے سے ریکلیم ہونے والی زمین کا سروے کرنے کی ہدایت کر دی۔ واضح کیا کہ کسی بھی سرکاری زمین کا 1 انچ بھی قبضہ کرنے نہیں دوں گا۔ 15 یوم میں سروے کر کے رپورٹ دی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو سرکاری زمین کی مکمل حفاظت کرنے کی ہدایت کی۔ صوبائی وزراء سعید غنی، ضیاء حسن لنجار، میئر کراچی مرتضی وہاب، چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ، پرنسپل سیکرٹری آغا واصف، کمشنر کراچی حسن نقوی نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے شہر سے تجاوزات کے خاتمے سے متعلق فالو اپ اجلاس کی بھی صدارت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آئندہ ہفتے سے شہر میں تجاوزات کے خلاف مؤثر آپریشن کرنے کی ہدایت کر دی۔ کراچی کے شہریوں کے لیے آرام دہ سفر کی جانب بڑی پیش رفت، روزگار بھی ملے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی بس ساز کمپنی یوٹونگ کی جانب سے کراچی میں انٹرسٹی اور ای وی بسز کا پلانٹ لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے خوشخبری سنا دی۔ پرسکون سفر کا خواب تکمیل کے قریب، کراچی والوں کو روزگار بھی ملے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے بڑی خوشخبری سنا دی۔ دنیا کی سب سے بڑی بس کمپنی یوٹونگ کی جانب سے کراچی میں انٹرسٹی اور ای وی بس پلانٹ لگانے کا فیصلہ۔ اس بات کا اعلان یوٹونگ مشرق وسطیٰ کے سی ای او اور دیگر حکام کی کراچی میں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ملاقات میں کیا گیا۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ یوٹونگ کی جانب سے کراچی میں پلانٹ لگانے کا کام 3 ماہ کے اندر شروع ہو جائے گا۔ پلانٹ کا کام اگلے سال مکمل ہو جائے گا۔ اب یوٹونگ کی انٹرسٹی اور الیکٹرک بسیں اب کراچی میں بنیں گی۔ پلانٹ میں ای وی بسیں اور ہائیڈریٹ ڈیزل بسیں تیار کی جائیں گی۔ پلانٹ لگنے سے صنعتوں کو فروغ ملے گا، روزگار کے لیے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ کراچی میں شدید گرمی اور حبس سورج سواریزے پر آ گیا۔ شدت 52 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ ہیٹ اسٹروک سے شہری نڈھال۔ 2 دن میں کراچی کے مختلف علاقوں سے 30 لاشیں ملی ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق مرنے والے زیادہ تر افراد نشے کے عادی لگتے ہیں۔ 2 ماہ میں ہیٹ اسٹروک سے 51 شہری جان سے گئی۔ چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ شہر میں فی الحال بارش کا کوئی امکان نہیں۔ تفصیلات جاوید قائم خانی کی رپورٹ میں۔ کراچی میں قیامت خیز گرمی، شہری نڈھال، پیاس اور حبس سے برا حال، ہیٹ ویو نے سانس لینا کر دیا دشوار۔ 2 دن سے شہر پر ہیٹ ویو کا راج، متاثرہ افراد کی تعداد 62 ہو گئی۔ جمعرات کو پارہ 37 ڈگری تک پہنچ گیا۔ حبس اور ہوا میں نمی بڑھنے کی وجہ سے گرمی کا احساس 46 ڈگری سینٹی گریڈ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں ہوا میں نمی کا تناسب 55% ہے۔ فی الحال بارش کا کوئی امکان نہیں۔ سول اسپتال میں 18 مریض گرمی سے متاثر ہو کر پہنچے۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں 17،
जना अस्पताल में 12, सिंध गवर्नमेंट साउदाबाद में 4 केसेस रिपोर्ट हुए। लियाकत नेशनल में 3 और सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में 3 अफराद गर्मी से मुतासिर होकर पहुंचे। कराची में गर्मी बढ़ते ही मुख्तलिफ इलाकों में लाशें मिलने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। पिछला 2 रोज के दौरान कराची में मुख्तलिफ इलाकों से मजमूई तौर पर 30 लाशें मिली हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मरने वाले ज्यादातर अफराद नशे के आदी लगते हैं। चीफ रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ मकामात से 8 अफराद की लाशें मिली हैं। देखा, आम रूटीन के हिसाब से 15 तारीख तक जो है हमारे पास जो अमूमन बॉडीज़ की तादाद थी वो 28 से 32, 33 इतनी बॉडीज़ आ रही थी, लेकिन अचानक 16 तारीख को जो है ना, और 16 से और अब तक जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफा होता चला गया। और कल हमारे पास जो टोटल बॉडीज़ आई हैं एकदम ज़्यादा मकदार हुई है, तो वो है 64 से 65 तक बॉडीज़ हमारे पास कल के डेट में आई हैं, जो एकदम आई हैं। इससे पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि हम वो 30-32 पे चल रहे थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ मकामात से आज 5 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। छिपा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 13 अफराद की लाशें छिपा सर्दखाने मुंतकिल की गईं। गुज़िश्ता रोज़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 अफराद की लाशें ईदी सर्दखाने मुंतकिल की गईं। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज़ कर गया। 3-3 घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना महाल कर दिया। इलाका मकीनों ने लोड शेडिंग के दौरानिये में फौरी कमी का मुतालबा किया। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखेंगे। दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज, लेकिन के इलेक्ट्रिक की बेहिस्सी बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों तक पहुंच गया। शाह फैसल कॉलोनी में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। दिन में 4 बार 3-3 घंटे की लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी। शहरियों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से घंटों की लोड शेडिंग की जाती है। जो बिल अदा नहीं करते उनकी बिजली काटी जाए, पूरे इलाके को अजियत ना दी जाए। ये बात भी कोई वजह है, लेकिन एक बात यह है कि घुन के साथ चने क्यों पिस रहे हैं भाई? जिनके नहीं है उनकी लेट काट दें, उनकी लेटें काट दें, उनको नसीहत दें। मकीनों का कहना है कि रात में जिस वक्त पानी आना होता है उस वक्त भी लोड शेडिंग की जाती है, जिसकी वजह से पानी बहरान भी पैदा हो रहा है। कि इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग के दौरानिये को कम करे। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। एप्टमा ने वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से IPPs को दी गई अदायगियों का रिकॉर्ड मांग लिया। सरपरस्ती आला गौहर एजाज ने तमाम 106 IPPs का डाटा पब्लिक करने का भी मुतालबा किया। बोले कि कौम को बताया जाए कि किस बिजली घर ने अपनी सलाहियत के मुताबिक कितनी बिजली पैदा की। बिजली की असल कीमत 30 रुपये फी यूनिट से कम होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि सरमायाकारों के इत्तेमाद के नाम पर करप्शन और बद इंतजामी की जा रही है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। इसको अदायगियां और बिजली घरों की पैदावारी सलाहियतें सवालात जन्म देने लगीं। एप्टमा ने वफाकी वजीर तवानाई से रिकॉर्ड मांग लिया। अपने सोशल मीडिया बयान में साबिक वफाकी वजीर तिजारत और सरपरस्त आला एप्टमा गौहर एजाज ने मुतालबा किया कि तमाम 106 IPPs का डाटा पब्लिक किया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि किस बिजली घर ने अपनी सलाहियत के मुताबिक कितनी बिजली पैदा की। साथ कहा कि IPPs को अदा की गई कैपेसिटी पेमेंट्स का रिकॉर्ड भी पब्लिक किया जाए। गौहर एजाज ने कहा कि IPPs की पैदावारी लागत, फ्यूल की मद में अदायगी और सार्फिन से वसूलियों का डाटा अवाम के सामने लाया जाए। अवाम जानना चाहते हैं कि उन्हें किस नर्ख पर बिजली फराहम की जा रही है। गौहर एजाज ने साफ कहा कि बिजली की असल कीमत 30 रुपये फी यूनिट से कम होनी चाहिए। मुतालबा किया कि IPPs के साथ किए गए मुआहदे को टेक एंड पे में तब्दील किया जाए। उन्होंने तजवीज़ दी कि हुकूमत जहाँ से सस्ती बिजली मिले वहाँ से खरीद ले। गौहर एजाज ने कहा कि 52% IPPs हुकूमती मिल्कियत में हैं। हुकूमती IPPs 50% से कम पैदावारी सलाहियत पर चला रहे हैं। हुकूमती IPPs सार्फिन से 100% कैपेसिटी चार्जेस वसूल कर रहे हैं, जबकि 48% IPPs 40 खानदानों की मिल्कियत हैं और 48% IPPs 50% पैदावारी सलाहियत पर चलाए जा रहे हैं। गौहर एजाज के मुताबिक इन IPPs को 21.12 खरब रुपए की अदायगी की गई है। सरमायाकारों के इत्तेमाद के नाम पर करप्शन और बद इंतजामी की जा रही है। IPPs मुआहदे को देखने से कबल मालूम नहीं था कि हमें किस तरह लूटा जा रहा है। अशरफ खान, सिटी 21। सनतकार बढ़ती पैदावारी लागत से परेशान, 25% इंडस्ट्री बंद होने के दावे भी कर दिए, जिसको हुक्मरान जमात के सेनेटर्स ने गैर तस्दीक शुदा करार दे दिया है। तलाल चौधरी और अनुषा रहमान ने कराची चैम्बर का दौरा किया। बिजनेस कम्युनिटी को वाज़ेह पैगाम दिया कि मुल्क IMF के रहमो करम पर है, रिलीफ नहीं दे सकते। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए।
नहीं दे सकते, सख्त फैसले बर्दाश्त करने होंगे। हुकूमत ने बिजनेस कम्युनिटी के सामने हाथ खड़े कर दिए। कराची चैम्बर से लीगी रहनुमाओं का खिताब। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, हमारा मसला IMF है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 9.5% टैक्स टू GDP पर मुल्क नहीं चल सकता। इशू हमारा IMF है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास और एज ए पाकिस्तानी। अगर कोई ऑप्शन है तो बता दें, चलें। मैं IMF की बात नहीं मानता और मुझे शौक भी नहीं कि हम IMF की बात मांगें, लेकिन मुझे ये बताएं, ये वो पाकिस्तान है जिसका टैक्स टू GDP जो है वो 9.5 है। 9.5 पे पाकिस्तान, दुनिया नहीं चल सकता, मुल्क नहीं चल सकते। सेनेटर अनुषा रहमान बोली, IMF के अलावा कोई चारा नहीं है। नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई नहीं जाती तो मईशत आसमान पर होती। लेकिन हमारे पास इस वक्त IMF में जाए बगैर चारा नहीं है। जो पिछले 5-6 साल में हुआ, मैं उसके ऊपर कुछ बात नहीं करना चाहती। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को ना गिराया जाता, अगर उनके साथ ये पनामा के नाम के ऊपर अकामा पे ना निकाला जाता, यकीन करें कि इकॉनमी आपकी आसमानों की तरफ जा रही। सनअतकारों की जानिब से बुलंद पैदावारी लागत के 22-25% इंडस्ट्री बंद होने के दावे को भी हुकूमती वुज़रा ने गैर तस्दीक शुदा करार दे दिया। कैमरामैन शकील के साथ काविश मेमन, City 21। MQM पाकिस्तान ने पावर सेक्टर के बहरान को मुल्क की बका और सलामती का मसला करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मुल्क में 25% सनतें बंद हो चुकी हैं। बजट में डेवलपमेंट से ज़्यादा रकम पावर सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनियों के लिए मुख्तस की गई है। सुप्रीम कोर्ट मामले पर नोटिस ले। शुएब मुख्तार रिपोर्ट करेंगे। MQM पाकिस्तान ने पावर सेक्टर के बहरान को दहशतगर्दी से बड़ा मसला करार दे दिया। पाकिस्तान हाउस में अरकान सूबाई व कौमी असम्बली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इस मुल्क में हर कोई पावर सेक्टर बहरान से मुतासिर है। हमारी 25% सनतें बंद हो चुकी हैं। लोगों के बेरोजगार होने से मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ने का अंदेशा है। इंडस्ट्रीज कॉम्पीट नहीं कर पा रही, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है। FDI आना बंद, इन्वेस्टमेंट आना बंद, डॉलर आना बंद, और जो यहाँ पर एम्प्लॉय थे उनकी फैक्ट्रियों में वो सब जो है वो फारिग हो रहे हैं। 25% फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। ये दहशतगर्दी के मसले से बड़ा मसला है। दहशतगर्दी मुल्क में इसकी काउंटर प्रोडक्ट है, इसकी बाय प्रोडक्ट है। इस हालात की बाय प्रोडक्ट, इससे दहशतगर्दी निकलेगी। मुस्तफ़ा कमाल ने IPP से किए गए मुआहिदों को मुल्क के मुआशी मुफाद के लिए नुकसानदा करार दिया। बोले, आइंदा माली साल के बजट में पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट से ज्यादा रकम पावर सेक्टर के लिए मख्तस की गई है। हुकूमत इस मसले का हंगामी बुनियादों पर हल निकाले। आज खुदा के वास्ते उन IPPs को बुलाकर, 40 IPPs को बुलाकर बताओ कि तुम चांद पर नहीं रह रहे, इसी मुल्क में रह रहे हो ना। देखो मेरे मुल्क की क्या कंडीशन हो गई है, देखो मेरा मजदूर भी परेशान है, मेरा सनतकार भी परेशान है। हम आपको ये पैसे, ये एग्रीमेंट पे अमल दरामद नहीं कर सकते। जो लोकल्स हैं उनके लिए, उनको बिठाकर तो फौरन जो है वो आप ये कैपेसिटी चार्जेस में अदा होने वाले एग्रीमेंट के इस क्लॉज को फारिग करें, नहीं दे सकते पैसे। रहनुमा MQM पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से पावर सेक्टर बहरान पर नोटिस लेने की अपील की। उनका कहना था कि मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, 24 करोड़ लोगों की तौहीन इंसानियत पर नजरसानी करें। ये सियासत नहीं, मुल्क की बका का मसला है। कैमरामैन मन्नान खान के साथ शुएब मुख्तार, City 21। मलीर मेमन गोट खोसा मोहल्ला में मैनहोल में गिरकर 2 बच्चों की हलाकत हुई। बच्चों के लवाहकीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। जाँ भाग होने वाले 9 साला हुसनैन के वालिद और 10 साला ताहा के नाना का कहना है कि वाक़या को 24 घंटे से ज़ायद गुजर गए, लेकिन कोई हुकूमती नुमाइंदा ताज़ियत तक के लिए नहीं आया। इमदाद तो दूर की बात है। मज़ीद हम जानेंगे मोहम्मद हमाद की इस रिपोर्ट में। हुकूमती गफलत या इंतजामिया की बेहिसी, खुले मेन होल एक बार फिर मौत के कुएं बन गए। मलीर मेमन गोट खोसा मोहल्ला में मेन होल में 2 बच्चे गिरकर जाँ बहक हुए। 24 घंटे गुजर गए, लेकिन हुकूमती वुज़रा समेत इंतजामिया का कोई अफसर आया, न ही मुतासिरा खानदान को कोई इमदाद का दिलासा मिला। जहाँ बहक हुए 10 साला ताहा के नाना और खोसा बरादरी के रहनुमा का कहना था, हमने अपनी मदद आप के तहत बच्चों को निकाला था। ASI गुलबहार का कहना था, गुज़िश्ता रोज डिप्टी मेयर ने यकीन दहानी तो कराई, लेकिन बच्चों के कफन दफन का भी इंतजाम अपनी मदद आप के तहत किया। कोई भी नहीं आया, कोई मदद नहीं, कोई नहीं। ऐसे बच्चे बहुत हो गए, अभी तक कोई भी नहीं आया, कोई सूरत नहीं। तो हमारी कोई भी मदद को नहीं आया, कोई हुकूमत का बंदा नहीं आया।
हम अपील करते हैं कि सेवरेज लाइन डाल दे और बच्चे बच जाए, हमारा तो बच्चा चला गया। सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर वो आए कल हमारे पास, उन्होंने कहा भाई हम आगे रिपोर्ट भेज देंगे, लेकिन कोई माली मदद इन गरीबों की, मजदूर हैं जिनके बच्चे फौत हुए, मजदूर हैं सब यहाँ के, कोई माली मदद का ऐलान भी नहीं किया, ना कुछ उनको दिया। हम अपनी मदद के आप तहत उनका कफन दफन का प्रोग्राम, ये जो सब कुछ हमने अपनी तरफ से किया है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान ने जाँ बहक होने वाले बच्चों के लवाहिकीन से मुलाकात की और तादियत की। इनका कहना था हुकूमती नुमाइंदे सिर्फ बातों और दावों तक महदूद हैं। देखिए, ये तो बराह रास्त जिम्मेदार बल्दिया उज़्मा कराची है, सलमान मुराद साहब डिप्टी मेयर भी हैं, इसके चेयरमैन भी हैं यूसी के, और साथ साथ डिप्टी मेयर भी हैं, और उनकी जिम्मेदारी तो बराह रास्त जिम्मेदारी है कि वो इन मसाइल के हल के लिए, अगर लोगों ने उनको वोट दिए हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों का मसला तो हल करें कम से कम। मलीर मेमन गोड में जगह जगह मेन होल पर लगे ढक्कन कमजोर हैं। अगर मेन होल के ढक्कन पक्के ना किए गए तो मुस्तकबिल में किसी दूसरे हादसे का सबब बन सकते हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ मोहम्मद हम्मास, सिटी 21। डिफेंस से लापता शहरी बिलाल हैदर से मुतालिक दरखास्त वापस। डॉक्टर आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोस वायरल केस में मुलजिम यासिर शामी को मुकदमा के नकुल फ्राहम कर दी गई। घर पर कब्जा के खिलाफ खातून ने DSP के खिलाफ अदालत पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान डिफेंस से लापता बिलाल हैदर की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त वापस ले ली गई। दरखास्त के बाद अदालत ने दरखास्त खारिज कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में डॉक्टर आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो वायरल करने के केस की समाअत के दौरान मुलजिम यासिर शामी को मुकदमे की नकुल फराहम कर दी गई। मुलजिमा नादिया शाह अदालत में पेश न हुई। मुकदमे में मुलजिमान पे आइंदा समाअत में फर्द जुर्म आयद होगी। घर पे कब्जे की कोशिश करने के केस में खातून ने DSP के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। एडवोकेट सादिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि DSP धमकियां देकर मुझसे मकान खाली करवाना चाहता है। सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा। आलमी मार्केट में सोना $60 महंगा हो गया। मकामी सतह पर 1 तोला सोने की कीमत 4600 रुपये और 10 ग्राम की कीमत 3944 रुपये बढ़ गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। आलमी मार्केट में $60 के बराबर इजाफे के बाद सोने की नई कीमत $2470 फी ऑन्स। जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में $60 के बड़े इजाफे के बाद सोने की नई कीमत $2470 फी ऑन्स हो गई, जो आलमी मार्केट में भी बुलंद तरीन सतह है। 1 तोला सोना 4600 रुपये इजाफे से 2,54,000 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 3,944 रुपये इजाफे से 2,17,764 रुपये का हो गया। मैं जो है सोने की अंगूठी बचकाना अंगूठी खरीदने आया था कि बच्चे को गिफ्ट करने के लिए, पर यहाँ पर आया तो कीमत पूछी सोने की और देखने के बाद पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर थी, जिसकी वजह से जो है मैंने वो कैंसिल कर दी। तो सोने का भाव इतना ज़्यादा है। देखिए, कीमतें तो गोल्ड की इसलिए बढ़ रही हैं कि आपके मुल्क की जो हमारी करेंसी है वो भी इतनी डी वैल्यू पोजीशन पर आके खड़ी हुई है, तो इसके मद्देनज़र रखते हुए लोग जाहिर सी बात है करेंसी नहीं रख रहे हैं, वो गोल्ड परचेज़ कर रहे हैं। अब जो गोल्ड परचेजिंग पे जा रहा है तो रेट इतने हाई जा रहे हैं। दूसरी अशिया जो है वो महंगा होने की सूरत में एक दूसरी चीज़ों के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो है ख़रीद क़ुव्वत जो है वो ख़त्म होती जा रही है। तो लिहाजा हकाम बाला से गुजारिश है इन सब चीज़ों के ऊपर भी नज़र डालें। सराफा मार्केट में 1 तोला चांदी 2900 रुपये पर बरकरार। सोने की नई कीमतें मार्केट की 3 रोज़ा बंदिश के बाद सामने आई हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 2 दिन की तातील के बाद दबंग आगाज। 100 इंडेक्स ने बुलंदी का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। तफसीलात आयास राना की रिपोर्ट में। 2 दिन के आराम के बाद स्टॉक मार्केट की लंबी छलांग, एक और तारीख साज दिन, बुलंदियों का नया रिकॉर्ड कायम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज सरमायाकार सरगर्म। स्टॉक मार्केट में IT सेक्टर आज सर फहरिस्त रहा, जिसकी अमेरिकन मोटर कार तैयार करने वाली कंपनी के साथ होने वाले मुआहदे की खबर की वजह से तेजी देखी गई। साबिक डायरेक्टर स्टॉक मार्केट जफर मोती का कहना है, जिस पर कम टैक्स लगा है वो कंपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। जो छुट्टियों से पहले जो मार्केट थी उसने बहुत अच्छा अपना परफॉर्म किया था, 1200 से ऊपर पॉइंट बंद हुए थे, और आज भी मार्केट खुली तो लोगों को यही उम्मीद थी कि IMF जैसे इन्होंने क्या मुआहदा हो रहा है
तो मार्केट और तेज़ खुलेगी। और फिंच की रिपोर्ट भी आपने देखी कि उन्होंने कहा है कि हुकूमत तो शायद 18 महीने की चलेगी, लेकिन ये कि महंगाई इस साल कम हो जाएगी। और इंटरेस्ट रेट भी इन्होंने लिखा है कि वो जून तक ये तकरीबन 14% तक आ जाएगा। आज के दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 184 पॉइंट्स के इजाफे से 81,839 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट की तारीख की अब तक की नई बुलंद तरीन सतह है। शेयर्स की लेन देन के दौरान 456 कंपनियों के 47 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 25 अरब रुपए से जायद की रही। आज 241 कंपनियों शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 155 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अयाज राना, कराची। 13 साला चमकता सितारा या नन्हा उस्ताद लियाकत अबा की तंगलियों में अपनी जहानत की रोशनी फैला रहा है। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखिए। मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ, पर काम करूँगा बड़े। उम्र कम लेकिन इरादे पहाड़ों से बुलंद। लियाकताबाद की तंग गलियों में रोशन जहन रखने वाला हुज़ैफा नन्हा उस्ताद बन गया। तेरह साला नन्हा उस्ताद हुज़ैफा जामिया NAD में मुख्तलिफ कोर्सेज की क्लासेस भी दे रहा है। हुज़ैफा में कम उम्री से ही कुछ कर दिखाने का जज्बा मौजूद था। अपने खिलौनों को तोड़कर कुछ नया दरियाफ्त करने की जस्तजू उसे कुछ कर दिखाने में मददगार साबित हुई। इस रास्ते पर इसे मुतअद्दिद बार वालिदैन से डांट भी सुनने को मिली। मैंने अपने कुछ फेवरेट टॉयज़ तोड़े, थोड़ी बहुत वालिदैन से डांट पड़ी, लेकिन फिर उसके बाद मुझे जब मैंने मार्केट में उसी तरह की चीज़ें कुछ सालों बाद आती हुई देखी एज अ प्रोडक्ट, तो फिर मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि आई शुड रियली वर्क ऑन दिस एंड दिस कुड बी अ ग्रेट पाथवे फॉर मी। हुज़ैफा ने जुस्तजू के सफ़र को जारी रखा, ज़हनी सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल किया, सेंसर कार, ब्लाइंड स्टिक और दीगर चीज़ें कम वसाइल से बना डाली। मेरा ख्वाब तो अभी भी वही है कि अभी भी ऐसी कोई एक चीज़ बनाऊं जो कि मतलब बिल्कुल एक न्यू इन्वेंशन हो या फिर एक ऐसी इनोवेशन जो कि दुनिया को हिला दे। सो आई हैव बिन वर्किंग एंड रिसर्चिंग, तो उसके लिए मैं छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा हूँ। जैसे कि मेरी कार्ड्स हैं, मैंने कार्ड्स को एक अलग लाइन में किया हुआ, अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स को एक अलग लाइन में। तो मेरी जो कार्ड्स हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता उन पर अपग्रेड करता जा रहा हूँ। नन्हा उस्ताद मुस्तकबिल का परवान चढ़ता ऐसा सितारा है जो आला हुकाम की जानिब से तवज्जो का तलबगार है। हुज़ैफा एक बेहतरीन मिसाल है कि कम उम्र में टेक्नोलॉजी का बरवक्त और सही इस्तेमाल और असातिज़ा की रहनुमाई तलबा में मुस्बत तब्दीली पैदा कर सकती है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।